इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा कॉमन नेम एंड IUPAC नेम ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। आज हम स्टडी करेंगे कॉमन नेम और ट्राइवियल नेम एंड IUPAC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। So first, the trivial name of carboxylic acid are given on the basis of their sources, and in IUPAC name the E of alkane is replaced by oic acid. So the name of carboxylic acid is इथेनोइक एसिड। तो हमने यहाँ पर देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो नेम है दे आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस, मीन्स फ्रॉम वेयर दे आर ऑब्टेन, यानी जहाँ से वो एसिड ऑब्टेन हुए उस बेसिस पर उसके नाम दिए गए हैं। और IUPAC नेम में हम याद रखेंगे कि ई ऑफ अल्केन इज रिप्लेस बाय OIC एसिड। तो इसके बाद हम वन बाय वन कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम देखेंगे, कॉमन नेम और ट्राइवियल नेम एंड IUPAC नेम। तो सबसे पहले आता है HCOOH। द नेम ऑफ दिस एसिड इज फॉर्मिक एसिड। SCOH, the name of this acid is formic acid. The name formic acid is given from the word formica. इसको जो नाम दिया गया है फॉर्मिक एसिड, ये नाम दिया हुआ है फॉर्मिका पर से, मीन्स इट इज द रेड एंट। ये एसिड जो ऑब्टेन होता है वो रेड एंट से ऑब्टेन होता है और रेड एंट को फॉर्मिका कहा जाता है। देयरफॉर द नेम ऑफ HCOOH is formic acid. Then second is CH3COOH. It is the acetic acid. This acid is obtained from vinegar. Acetic acid is obtained from vinegar, and the vinegar is called acetum. Therefore its name is acetic acid. Next is CH3CH2COOH. The name of this acid is propionic acid. The name of this acid is propionic acid, and propio means the first acid. It is a first acid, therefore it is called propionic acid. Next, CH3CH2CH2COOH. The name of this acid is butyric acid. The name is butyric because it is obtained from butter, therefore it is called butyric acid. Then the next acid is which contains 5 carbon atom. It is called valeric acid. It is obtained from the plant Valera, therefore it is called valeric acid. The next is CH3CH2CH2CH2COOH. 6 carbon atom. This acid contains 6 carbon atom. It is called caproic acid. Capro means goat, and it is obtained from goat, therefore it is called caproic acid. Valera, it is a name of a plant. It is obtained from plant Valera, therefore it is called valeric acid. So here we see the 6 different types of carboxylic acid, and name is given on the basis of their sources. First is HCOOH, formic acid, because it is obtained from red ant, which is called formica. Then CH3COOH, it is acetic acid because it is obtained from vinegar, that is acetum.
CH3CH2COOH, it is propionic acid. Propio means it is a first acid. Then CH3CH2CH2COOH, it is butyric acid because it is obtained from butter. Then CH3CH2CH2CH2COOH, it is valeric acid because it is obtained from plant Valera. Then 6 carbon acid, that is CH3CH2CH2CH2COOH, it is caproic acid because it is obtained from the capro means goat. So in this way the name of carboxylic acids are given on the basis of their sources. Then the another carboxylic acid is this one. This carboxylic acid contains 4 carbon atom, but here one there is branch of carbon atom, so it is called isobutyric acid. Here there is a branch, so it is called isobutyric acid. Or another name is the carbon atom which is attached to CO group is अल्फा. यहाँ पर जो कार्बन एटम है जो CO को डायरेक्टली अटैच है उससे हम अल्फा कार्बन एटम कहेंगे. और अल्फा कार्बन को यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, सो इट्स नेम इज अल्फा मिथाइल. रिमेनिंग 3 कार्बन एटम दैट इज प्रोपियोनिक एसिड. तो यहाँ पर ये दोनों भी नेम इसके करेक्ट है. आइदर यू से आइसोब्यूट्रिक एसिड और अल्फा मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड. तो तुम अल्फा बीटा का इस्तेमाल करके भी ट्राइवियल नेम दे सकते हैं, या फिर आइसो या सेकेंडरी बताकर भी हम ट्राइवियल नेम दे सकते हैं. उसके बाद कुछ एग्जांपल और देखेंगे हम. CH2 डबल बॉन्ड CH COOH. यहाँ पर COH ग्रुप वेनिल ग्रुप को अटैच है. इट्स नेम इज एक्रिलिक एसिड. ऐसे ही हम अल्डिहाइड में देखे हुए एक्रोलीन, वैसा यहाँ पर क्या है एक्रिलिक एसिड. उसके बाद है कुछ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जांपल्स, जिसमें पहला है बेंजीन रिंग को COOH ग्रुप अटैच है जिसे हम नाम देंगे बेंजोइक एसिड. ऑलरेडी ये पहले भी हम देख चुके हैं बेंजोइक एसिड. देन अगर बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पर OH ग्रुप है तो ये भी हम ऑलरेडी फेनॉल में पढ़ चुके हैं. इट इज़ कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड. ये भी हमने पढ़ चुका है पहले. उसके बाद अगर बेंजीन में COOH ग्रुप है और साथ में मिथाइल ग्रुप है तो इसे हम ऑर्थो टोल्विक एसिड कहेंगे. ऑर्थो क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पर है, सो इट इज ऑर्थो टोल्विक एसिड. अगर बेंजीन में 2 COOH ग्रुप है तो इसे हम नाम देंगे थैलिक एसिड. थैलिक एसिड. ऐसे ही हमने थैलाल्डिहाइड नाम दिया था अल्डिहाइड में, और यहाँ पर इसको नाम देंगे हम थैलिक एसिड. और एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें साइक्लोहेक्सेन को हम अटैच कर रहे हैं COOH ग्रुप. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज साइक्लोहेक्साइल. इसको नाम देंगे हम साइक्लोहेक्साइल. और इस ग्रुप को कंप्लीटली यहाँ पर बोलेंगे हम कार्बोऑक्सिलिक एसिड. तो यहाँ पर हमने कुछ इम्पोर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के ट्राइवियल नेम्स देखे हुए. फिर एक बार मैं इसको रिपीट करूँगी, ध्यान से देखो. तो सबसे पहले जो भी नाम हमने यहाँ पर दिए हुए दे आर डिराइव फ्रॉम देयर सोर्सेस. यानी नाम जो दिए गए उसके सोर्सेस पर से दिए गए. जैसा HCOH को फॉर्मिक एसिड कहा गया है क्योंकि इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेड एंट दैट इज कॉल्ड फॉर्मिका. CH3COOH, it is called acetic acid because it is obtained from vinegar which is called acetum. CH3CH2COOH, it is propionic acid, means it is the first acid.
Then 4 carbon carry acid is butyric acid because it is obtained from butter. 5 carbon acid is valeric acid because they are obtained from plant Valera. 6 carbon acid is called caproic acid because it is obtained from capro. Capro means goat. Then here there is branch of carbon atom and it carry 4 carbon atom total. So it is isobutyric acid. Then acrylic acid, then aromatic benzoic acid, then salicylic acid, then orthotolvic acid. अगर 2 COH ग्रुप है तो ऑर्थो पोजीशन पर थैलिक एसिड, और अगर साइक्लो ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है तो उसको बोलेंगे हम साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड. हेक्साइल इसलिए क्योंकि यहाँ पर रिंग में 6 कार्बन एटम. तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्राइवियल नेम देते. अब हम पढ़ेंगे अबाउट द IUPAC नेम. तो IUPAC नेम में सबसे पहले हमें याद रखना है कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हमें देखना है. तो यहाँ पर तो एक ही कार्बन है. सो द पेरेंट नेम इज मीथेन. ई निकाल कर हम यहाँ पर लिखेंगे ऑइक एसिड, यानी टोटल इसका नाम बना मीथेनॉइक एसिड. एक कार्बन है, सिर्फ एक ही कार्बन है. देयरफॉर नेम ऑफ पेरेंट अल्केन इज मीथेन and here E is replaced by OIC acid. So total name is methanoic acid. First letter should be capital. In second acid there are 2 carbon atoms. So parent name is ethanoic acid. इथेन से हम यहाँ पर क्या किए, इथेनोइक एसिड. ई निकाल कर OIC एसिड. नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन्स 3 कार्बन एटम. So its name is, parent name is प्रोपेन. ई निकाल कर हम यहाँ पर लगाएंगे ऑइक एसिड. उसके बाद 4 कार्बन है. सो पेरेंट नेम इज ब्यूटेन, और आगे ई निकाल कर एसिड लगाएंगे. देन 5 कार्बन है इस एसिड में, इसका नाम देंगे हम पेंटेनोइक एसिड. उसके बाद 6 कार्बन है एसिड में, हेक्सेनोइक एसिड. यहाँ पर हमने एसिड को नंबर नहीं दिया क्योंकि हर कंपाउंड में दिस कार्बोक्सिलिक कार्बन गेट 1 नंबर. इट इज ऑलवेज एट द टर्मिनल. तो COH ग्रुप हमेशा टर्मिनल पर होता है, इसको हमेशा 1 नंबर ही मिलता है. देयरफॉर यहाँ पर हमने नंबर नहीं लिखा, सिर्फ हमने मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड इस तरह से लिखा. तो इसको यहाँ पर एसिड को हम नंबर नहीं देंगे, इज ऑलवेज गेट 1 नंबर. उसके बाद सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन 3 कार्बन की. उसके बाद 1 नंबर देंगे हम COH ग्रुप को. देन दिस कार्बन गेट 2 नंबर एंड दिस कार्बन गेट 3 नंबर. सो द नेम ऑफ अल्केन इज प्रोपेन. 3 कार्बन है इसलिए इसका नाम प्रोपेन. ई निकाल कर हमने लिखा यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड, और 2 पोजीशन पर मिथाइल है इसलिए इसका नाम आता है 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड. तो क्या करें हम इसका नाम देने के लिए, सब में पहले कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किए कार्बन की. देन उसके बाद उसको नंबरिंग करें. नंबरिंग इस तरह से करना है कि COOH ग्रुप को 1 नंबर मिले, लिस्ट नंबर मिले, और ये टर्मिनल पर इसलिए इसको हम 1 नंबर दिए. देन 2 देन 3. तो 3 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में इसलिए पेरेंट नेम आता है इसका प्रोपेनोइक एसिड, और 2 पोजीशन पर मिथाइल है इसलिए 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड. अगला स्ट्रक्चर फिर से हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन. यहाँ पर भी हम नंबरिंग देंगे. तो COOH
ग्रुप के कार्बन को हम लीस्ट नंबर देंगे, तो इसलिए इसका पेरेंट नेम होता है प्रोपेन, लेकिन डबल बॉन्ड रहने से हम इसे प्रोपीन कहेंगे और इन के पहले थोड़ी सी यहाँ पर जगह छोड़ेंगे इन की पोजीशन बताने के लिए, और आगे हम लिखेंगे OIC एसिड, और इन की पोजीशन यहाँ पर हमने पहले ही दी हुई है, 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, यानी इन की पोजीशन यहाँ पर 2 है, तो इसलिए हम यहाँ पर नाम देंगे प्रोपेन 2 इनोइक एसिड, और फर्स्ट लेटर यहाँ पर हम कैपिटल करेंगे। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपेन 2 इनोइक एसिड। उसके बाद बेंजोइक एसिड बोलेंगे इसको, कॉमन नेम हो या IUPAC नेम। उसके बाद यहाँ पर ये दोनों फंक्शन ग्रुप में से कार्बोक्सिलिक एसिड को प्योरिटी मिलती है, इसको 1 नंबर देंगे और इसको 2 नंबर। तो पेरेंट नेम इसका भी आता है बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड में 2 पोजीशन पर यहाँ पर है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसलिए पूरा नाम आता है 2 हाइड्रोक्सिल बेंजोइक एसिड। उसके बाद यहाँ पर भी वैसे ही है, 1 नंबर हम COOH वाले कार्बन को देंगे और 2 नंबर मिथाइल ग्रुप वाले कार्बन को देंगे, तो इसका नाम आएगा 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ही रिंग में 2 COOH ग्रुप है, तो एक का COH ग्रुप के कार्बन को 1 नंबर देंगे और दूसरे COH वाले कार्बन को 2nd नंबर देंगे। इसका नाम आएगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पूरा कंप्लीटली हमें लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और लास्ट है साइक्लोहेक्सेन को हमने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच किया हुआ है, तो इसका नेम आएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद हम कुछ ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे जिसमें 2 COH ग्रुप होते हैं। पहला हम देख रहे हैं यहाँ पर COH, इसका नाम ऑक्सैलिक एसिड है, जिसमें 2 COOH ग्रुप होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट COH, CH2, COH, इसमें भी हम देख रहे हैं 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, लेकिन कार्बन आइटम टोटल 3 है, इसलिए यहाँ पर टोटल कार्बन आइटम 3 है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड 2 है, और इसका कॉमन नेम आता है मैलोनिक एसिड। सीक्वेंस में ही याद रखना है इसको, पहला ऑक्सैलिक एसिड जिसमें 2 कार्बन आइटम है, फिर मैलोनिक एसिड जिसमें 3 कार्बन आइटम है। उसके बाद हम 4 कार्बन का एसिड लेंगे जिसमें 2 COH ग्रुप है, इट इज़ कॉल्ड सक्सेनिक एसिड। उसके बाद 5 कार्बन जिसमें 2 COOH ग्रुप है, that is COH, CH2, 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 COH, it is called गुल्टारिक एसिड। उसके बाद हम और एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे जिसमें टोटल 6 कार्बन है और 2 COH ग्रुप है, एंड नेम इज एडिपिक एसिड। तो जैसा हमने वहाँ पर 6 कार्बन तक के एसिड की सीक्वेंस देखी थी, फॉर्मिक एसिड,
एसिटिक एसिड, देन प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, वैलेरिक एसिड एंड कैप्रोइक एसिड। वैसे यहाँ पर 5 एसिड के नाम याद रखेंगे हम। कार्बन एटम 1 से इंक्रीज हो रहा है। ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, बुल्टारिक एसिड एंड एडिपिक एसिड। तो ये होगा ट्राइवियल नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद देखेंगे हम आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम में कार्बन एटम यहाँ पर देखना है। इसमें कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन एटम है, इसलिए इसका नाम पेरेंट नेम जो है ईथेन आता है। उसके बाद हम यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे डाई ऑइक एसिड। तो टोटल नाम बनता है ईथेन डाई ऑइक एसिड। उसके बाद है 3 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में, तो इसका नाम होगा प्रोपेन डाई ऑइक एसिड। उसके बाद 4 कार्बन एटम है, तो पेरेंट नेम होगा ब्यूटेन डाई ऑइक एसिड। डाई इसलिए लगा रहे हैं कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। फिर 5 कार्बन है, इसलिए पेंटेन। 2 एसिड ग्रुप है, इसलिए डाई ऑइक एसिड। और लास्ट है जिसमें 6 कार्बन एटम है, इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे हेक्सेन डाई ऑइक एसिड। तो इस तरह से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर देखा। तो यहाँ तक के टॉपिक में हमने अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर देखे और क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा।